Hello, dear aspirants. So, in the concept talk 3, we have a very important as well as very interesting topic today. Okay, so for next 15 to 20 minutes, you're gonna have the joy in the mathematics optional, right? So, as the name suggests, curl. So, obviously, I'm not gonna tell you what is del cross f vector. Obviously, not. Right. So what I'm gonna tell you here, let's discuss that. Dear students, when you talk about your UPSC exam, be it the CSE or forest services, mathematics optional, in case of vector calculus, you have a question. What is that category of question? देखो कॉन्सेप्ट का कतई ये मतलब नहीं है कि वी हैव टू गो इन द फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स, because this is not a batch for research in mathematics, this is a batch for mathematics optional, so we have to stick according to demand of UPSC maths optional. ठीक है, so whenever I come with a concept, it clearly indicates कि today you are gonna address at least 2 to 3 type of problems in just 15 to 20 minutes. That is the whole crux of this series. Okay, so when I talk about this concept कि जो हम अभी बात करने वाले हैं, जो कर्ल बात है, so you may have some categories of questions where you come across conservative fields. And when I talk about fields, obviously vector fields के बारे में we are talking about here. So conservative fields, ठीक है. The other point you come across, that is work done, ठीक है. Work done from moving a particle from some point P1 to P2. The other word you come across, scalar potential, ठीक है. So these are not ordinary words. These are very special kind of questions nature for your maths optional. Every word comes with a question in your exam. Clear? So when I talked about work done, conservation, scalar potential, the other point we can talk about irrotational as well. ठीक है. सो आपके लिए वो कर्ल रहा होगा, लेकिन मेरे लिए वो केवल कर्ल ना रह के इन पॉइंट्स पर बात करने वाला एक मुद्दा बन गया है. ठीक है. एंड यू कैन ट्रस्ट ऑन मी बिकॉज ओवर द एक्सपीरियंसेस आई नो व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी देयर. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट to have that PYQs chapter wise or categories wise, you can let us know, we can provide those. चल सॉरी. देखिए बच्चों, जब हम कंजर्वेसी की बात करते हैं मैथ्स के केस में, तो मैं यहां आपको कर्ल के डेफिनेशन से ना उठा के एक क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में डालता हूं. ठीक है. और उस क्यूरियोसिटी को पीपीटी के फॉर्म में नहीं डाला. देयर इज एन इंटेंशन बिहाइंड दैट. चलिए, बी ऑन द बोर्ड प्लीज. Suppose that if I give you a question to think, ठीक है, I am giving you a question to think. If some vector function f vector is of the form del phi, where phi is a level surface or scalar valued function. क्या है? phi is a scalar valued function. Del phi को ही you also call grade phi, right or not? ठीक. So what I want to say here is, if f vector is of the form del phi or grade phi, then what can we thought of? कंस्ट्रेंट्स पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए मैं आज आपके लिए इस कॉन्सेप्ट डिकोडिंग में
एक एक पॉइंट पर बात करूंगा कि कहां आप गलतियां करते हैं और क्यों क्वेश्चन आप कैच नहीं कर पाते। चलिए, तो इफ एफ वेक्टर इज ऑफ डेल फाई वेयर फाई इज अ स्केलर valued function or simply scalar function with continuous partial derivative। ध्यान से देखना इस चीज को, with, क्योंकि यही चीजें तो आपको बताने वाली है यहां पर, है ना बाकी तो आपने रट्टा मार जिंदाबाद किया ही है। with continuous partial derivative, ठीक। क्या काम होगा इसका, ये अभी आपको रियलाइज करेंगे। तो हमने कहा इफ एफ वेक्टर इज ऑफ दिस फॉर्म देन, देखना ध्यान से, देन द वर्क डन बाय द फोर्स वेक्टर एफ वेक्टर from moving a particle from the point P, from the point, let's say P1, that is x1 y1 z1, to some arbitrary point, let's say P2, and you write that as some x y z, okay, आर्बिट्रेरी पर। अब वो आप कोई भी पॉइंट x1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 कुछ भी ले सकते हैं। सो व्हाट डज दिस से इज कि इफ f वेक्टर इज ऑफ डेल फाई, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, 10 मिनट के बाद जब ये समराइज होगा ना कॉन्सेप्ट, प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट्स में आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि ये सीरीज किस मैनर में आगे बढ़ रही है, राइट चलिए, तो इसके बाद आपको सारे क्रिस्टल क्लियर पिक्चर नजर आ जाएंगे। मैंने कहा इफ एफ वेक्टर इज ऑफ डेल फाई देन द वर्क डन बाय द फोर्स वेक्टर एफ फॉर मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2 इज, ध्यान से देखना, आई एम चेंजिंग द कलर, द रीजन इज बिहाइंड दैट, इज independent of the path joining points P1 and P2। क्या बोला, जो वर्क डन होगा बाय दिस फोर्स वेक्टर वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगा। सपोज दैट इफ यू हैव दिस पॉइंट P1 हियर, this point P2 here, if you follow this path, you can follow this path, you can follow this path, or any of the path you follow, no matter you follow the by the force F vector from moving the particle P1 to P2, either of the path you follow, the work done will be same if you work from this path, on this path, or on this path, or on this. That is the literal meaning of this। क्लियर है बात? तो इसका मैथमेटिक्स क्या है, ये कैसे हमें यूपीएससी में हेल्प करेगा, क्योंकि हम यहां पर इतिहास पढ़ने तो बैठे नहीं है। बहुत बढ़िया, चलिए बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। देखिए मजा आने वाला है अब अपने को, ठीक है, फुल मजा वेलकम तो मैथमेटिकली ये क्या है, देखना ध्यान से। क्या बोला, लेट इफ एफ वेक्टर इज डेल फाई, राइट, एफ वेक्टर क्या है, डेल फाई, लेट दिस इज इक्वेशन 1। आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग द वर्क डन, राइट और नॉट, कहां से कहां तक, from the point P1 to P2, so this will be F vector dot dr vector. This we all know. Work done by the force F vector from moving a particle from P1 to P2 is given by F vector dot dr vector, right?
यहां पर एफ वेक्टर मान लो मेरे पास है F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप. R vector is the position vector as in the scalar part we take x comma y comma z. Here it is denoting as xi cap plus yj cap plus zk cap. So dr vector is denoted by dxi cap plus dyj cap plus dzk cap. Fair? So अगर मैं आपसे कहूं कि f वेक्टर डॉट dr वेक्टर आपको कैसा दिखेगा यहां से? एफ वेक्टर जो मुझे दिया गया है वो दिया गया है डेल फाई की फॉर्म में, राइट और नॉट? तो सबसे पहले तो मैं एफ वेक्टर डॉट डीआर वेक्टर के बारे में कंसर्न हूं कि इसका क्या करें. तो चूंकि एफ वेक्टर क्या दे रखा है? डेल फाई, और डेल फाई कॉन्सेप्ट 1 में हम बता चुके हैं क्या है, दैट इज डेवर फाई ओवर डेवर एक्स प्लस डेवर फाई ओवर डेवर वाई प्लस डेवर फाई ओवर डेवर जेड, राइट? तो इफ यू टॉक कि सर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर क्या होगा, सो दैट विल बी डेवर, अच्छा आई कैप जे कैप बोल गए, तो डेवर फाई ओवर डेवर एक्स डी एक्स प्लस डेवर फाई ओवर डेवर वाई डी वाई प्लस डेवर फाई ओवर डेवर जेड डी जेड. सो इफ आई यूज दिस तो वर्क डन अपने पास क्या मिल जाएगा, बोल दो? वर्क डन विल बी P1 टू P2, एफ वेक्टर डेल फाई की फॉर्म में है, सो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का एक्सप्रेशन इज बिकमिंग एज राइट और नॉट? सो अभी आपको समझ आया कि ये सर ने यहां पर जोर क्यों दिया था, बिकॉज if this is not given then how you can suppose to the existence of dever phi over dever x dever phi over dever y and all. तो मैथ्स का स्टेटमेंट जब पढ़ते हैं आप, हर वर्ड का मीनिंग होता है, ठीक है? इंटीग्रेशन है, कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स है, सो इंटीग्रेशन इज पॉसिबल फॉर दैट, मींस फंक्शंस आर इंटीग्रेबल, राइट? सो हर वर्ड का मीनिंग होता है. बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, इफ फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स बाई जेड, सो डी फाई कैन बी रिटन एज डेवर फाई ओवर डेवर एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेवर फाई ओवर डेवर वाई इंटू डी वाई प्लस डेवर फाई ओवर डेवर जेड इंटू डी जेड. सो दिस कैन बी रिटन एज डी फाई. इधर क्या चल रहा है? टोटल वर्क डन फ्रॉम P1 टू P2. So this is total derivative of phi, बाहर इंटीग्रेशन है, अंदर डिफरेंशिएशन है, so you will get phi of x by z from P1 to P2 and that ultimately comes out as phi at P1 minus phi at P2, means phi का वैल्यू at the point P क्या है? What is the value of phi at the point P2? What is the value of phi at the point P1? Ultimately, our work done is depending only on those two values. Work done is independent of the path being followed joining P1 and P2. विश्वास दिलाइए, चमका कि नहीं? प्लीज से यस और नो, एकदम पूरे आनंद के साथ. क्लियर है सबको? नहीं चमका तो रिमाइंड कीजिए, एक बार फिर से देखिए, और इसलिए देखिए क्योंकि ये आपके 10 घंटे बचाने वाला है और आपके 10 मार्क्स बढ़ाने वाला है. इन 2 पॉइंट के लिए यहां पर इतनी एनर्जी, इतने एक्सपीरियंस को इंक्लूड करते हुए डाले जा रही है, ठीक है? मैं ऐसा नहीं कहता कि ये केवल मैं पढ़ा रहा हूं, हर किसी का अपना वे होगा, लेकिन एक मेरा वे है ऑप्शनल को देखने का. Whatever the experience I carry from prelims, mains or interview, the thing is I try to address every demand of UPSC exam. So what I found कि यार ये कर्ल वाले चैप्टर में कहीं कंजर्वेशी को लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी वर्क डन पूछ लेता है, कभी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बोल देता है, तो ये है क्या बवाल? Then I went through any of the university level book, you go for SAM series or anything. आज आप सॉम सीरीज में जाएंगे, आपको यही चीजें चमकने लगेंगी. पहले क्यों नहीं चमकी?
अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं आप। क्लियर है बात? सो कहां से स्टार्ट किया था हमने प्यारे बच्चों? अगर एफ वेक्टर डेल फाई की फॉर्म में है तभी तो ये घटना घटी, तभी ये घटना घटी, तभी ये घटना घटी, तभी ये घटना घटी। तो मींस अगर एंड पॉइंट पर स्केलर पोटेंशियल पता है, अभी स्केलर पोटेंशियल नहीं बोलूंगा, फाई का वैल्यू पता है, यहां पर पता है फाई का वैल्यू, यू कैन टेल द वर्क डन। आप किसी भी पाथ से, मान लो ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, मान लो पैराबोलिक पाथ है, अब जब आपने लाइन इंटीग्रल पढ़ेंगे, लाइन इंटीग्रल पढ़ा होगा तो आपको यह पता है कि लाइन इंटीग्रल में पाथ का क्या इंपॉर्टेंस होता है। इफ यू आर क्यूरियस अबाउट दैट देन डू लेट मी नो। हम उस पाथ इंपॉर्टेंस पर भी आपको क्वेश्चंस बताएंगे, क्योंकि लाइन इंटीग्रल में वहां से भी यूपीएससी में क्वेश्चंस रहते हैं। बोलिए, क्लियर है बात अभी? तो आज के बाद क्या याद रखेंगे? अगर एफ वेक्टर डेल फाई की फॉर्म में है, पार्शियल डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस विद द कंटिन्यूटी एश्योर्ड है, देन वर्क डन आप सीधा सीधा बता सकते हैं फाई एट एंड पॉइंट माइनस फाई एट स्टार्टिंग पॉइंट। आगे बढ़े अभी, चलो। तो कंजर्वेसी क्या है? Why we use the word conservative here? In such case, we say f vector is conservative, means it is not depending on the path chosen. Clear है? तो अब आप क्या कहेंगे जब भी आपसे किसी ने कहा, यहीं से कहानी शुरू करें। सो इफ समवन सेज, देखिए ध्यान से, इफ समवन सेज एफ वेक्टर इज कंजर्वेटिव, व्हाट डज दिस मीन? दिस इंप्लाई there exists a scalar function phi, ठीक है, of x by z, इसको स्केलर पोटेंशियल भी बोला जाता है, ठीक है। So there exists a scalar function phi such that f vector must be of the form del phi। क्या बोला? If f vector is independent of the path chosen। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मैंने कहा? If f vector, sorry, work done, I'm very sorry, if work done by the force vector f vector on moving, ध्यान से देखते रहिएगा, अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है और आपको बहुत मजा आने वाला है इस सेगमेंट में। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग दैट। इफ वर्क डन बाय फोर्स वेक्टर एफ वेक्टर on moving a particle from point P1 to P2 is independent of the path, joining P1 and P2, then what's gonna happen? You will say कि there exists a scalar function phi or scalar potential phi such that f vector is of the form del phi. So that is the other type of, other way, or you can say conversely to previous। previous क्या था? अगर f वेक्टर डेल फाई की फॉर्म में है, प्रीवियस डिस्कशन वाज व्हाट?
if f vector is of the form del phi, then work done is independent of the path chosen joining p1 and p2. Converse part is, if work done is independent of the path chosen, that is f vector has the conservancy, then there exists a scalar potential phi such that f vector equals del phi. तो मीन्स अगर हम मैथमेटिकली बात करें, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इतिहास पढ़ना ठीक है, लेकिन मैथ्स में बिना किए कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इफ यू टॉक अबाउट कि लेट इफ वर्क डन independent of path, then prove that f vector is of the form del phi. This is the another statement for us कि आप इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ लेकर चलिए और ये दिखा दीजिए कि f वेक्टर डेल फाई की फॉर्म में होता है, ठीक है। और जिस हिसाब से यूपीएससी का पैटर्न शिफ्ट कर रहा है, इस टाइप की इजी प्रॉब्लम, लेकिन सो कॉल्ड टफ, क्योंकि लोगों को डेफिनेशन पढ़ने की आदत है नहीं, लोगों को तो बस मैथ का मतलब फॉर्मूला समझ में आता है। बोलो हाँ या ना, यही तो बात है ना सबकी, उनको बस फॉर्मूला समझ में आता है कि अच्छा हाँ चलो ये फॉर्मूला रख दो, वैल्यू रख दो, न्यूमेरिकल एनालिसिस और पीडीई टाइप का, बस वही मैथ्स ऑप्शनल है। नॉट एट ऑल, ठीक है। ये चीजें ज्यादा आसान है। देखिए क्यों आसान है, देखिए बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। हम क्या लेकर चल रहे हैं, लेट इफ वर्क डन इज इंडिपेंडेंट। तो मान लो हम P1, सबसे आसान पाथ हमारे लिए क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन पाथ, यही हो सकता है ना। P1 एक पॉइंट है, मान लो मैंने मान लिया x1 y1 z1, P2 एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया x y z, ठीक है। आप उसको x2 y2 z2 लिख सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टडी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन पाथ ले लिया, ठीक। अब देखिएगा जो फाई ऑफ x y z है वो जो डिफाइन होगा, ध्यान से देखिएगा, दैट इज इंटेग्रेशन फ्रॉम x1 y1 z1 से x by z, ठीक, f वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो मान लो लेट इफ f वेक्टर इज ऑफ द फॉर्म f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप, देन वी हैव टू शो, क्या शो करना है, वी हैव टू शो कि f1 मेरा डेवर फाई ओवर डेवर x आ जाए, f2 मेरा डेवर फाई ओवर डेवर y आ जाए, f3 मेरा डेवर फाई ओवर डेवर z आ जाए, तभी तो इस फॉर्म में दिखेगा f वेक्टर। बोलो। तो आज मैं आपको थोड़ा सा टाइम 10-12 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूं, प्लीज से यस और नो, क्योंकि कनेक्ट डॉट हो जाएंगे, फिर नहीं तो बहुत ही बेतरतीब सा नजर आता है, जस्ट कि यार वो थंबनेल टाइप का कुछ वीडियो बना देना करके, और वो मेरी आदत नहीं है यार, बिल्कुल भी, मतलब मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूं। मुझे लगता है कि यार 20 मिनट की जगह 40 मिनट लगा लो, लेकिन एक बार कुछ महत्वपूर्ण तो हो, कुछ ऐसा तो लगे कि हाँ आज सॉलिडिफाई किया है एक कॉन्सेप्ट को। तो जब भी आपको मैथमेटिक्स में प्रूफ करना होता है तो यह भी एक तरीका होता है सोचने का। आपका टारगेट क्या है, दिस इज द टारगेट, ठीक है। देखना आज आपको प्रूफ भी कैसे ब्यूटीफुली दिखते हैं। टारगेट ये है कि f1 की जगह डेवर फाई ओवर डेवर x आ जाए, f2 की जगह डेवर फाई ओवर डेवर y आ जाए, f3 की जगह डेवर फाई ओवर डेवर z आ जाए, तो मजा आ जाएगा। बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस। देखना ध्यान से, अब तो आपने परमिशन दे दी ना कि कर सकते हैं 10 मिनट और। डिफरेंशियल कैलकुलस, वहां हमने पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा है
कि अगर मैं डेवर फाई ओवर डेवर एक्स निकालना चाहूं, सो दिस कैन बी रिटन एज चेंज इन फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट और नॉट, वेयर लिमिट इज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेवर फाई ओवर डेवर बाई लिखना चाहूं, सो लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, फाई ऑफ चेंज इन बाई, तो देखिए यहां पर एक्स में केवल चेंज है, बाई एंड जेड रिमेन्स कांस्टेंट, राइट. तो चेंज इन बाई एंड सो ऑन. तो मुझे चाहिए डेवर फाई ओवर डेवर एक्स टाइप. कहां पे, ध्यान से देखते रहना, थैंक यू बाद में बोलना. दिस इज f1 dx, क्योंकि dr वेक्टर इज f dx i कैप प्लस dy j कैप, तो उसी को यूज कर लिया. अब मैं चाहता हूं f1 की जगह डेवर फाई ओवर डेवर एक्स मिल जाए. टारगेट याद है एकदम, नजर के सामने रखिए, बिल्कुल भुलाइए नहीं उसको. तो फाई ऑफ एक्स बाई जेड तो मेरा ये लिख दिया मैंने. अगर मैं यही लिखना चाहूं, एक स्मॉल जस्ट चेंज इन फाई लेना चाह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने फाई एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर लिखना चाहा, तो दिस आई कैन राइट इज x1 बाई वन जेड वन, सेम लॉजिक से, ठीक है. x1 बाई वन जेड वन से x प्लस डेल्टा एक्स बाई जेड तक, किसका, f वेक्टर डॉट dr वेक्टर. सो लेट्स गिव दिस एज इक्वेशन 1, दिस एज इक्वेशन 2. क्या मिल गया, फाई ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स बाई जेड का एक्सप्रेशन, फाई ऑफ x बाई जेड का. मुझे चाहिए डेवर फाई ओवर डेवर x, राइट और नॉट. तो मैं अगर इस एक्सप्रेशन से इसको घटा दूं तो आधे रास्ते पर तो पहुंच गया ना. अरे बोलो हां या ना, आधे रास्ते पर तो पहुंचा ना. कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलो. आधे रास्ते तक पहुंचना ही काफी है. हमने क्या किया, अब कर दिया फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई जेड माइनस फाई ऑफ एक्स बाई जेड. तो ये था x1 बाई वन जेड वन से x प्लस डेल्टा एक्स बाई जेड, f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz माइनस फाई ऑफ एक्स बाई जेड क्या था, x1 बाई वन जेड वन से x बाई जेड f1 dx प्लस सॉरी f2 dy प्लस f3 dz. अब मैं जस्ट थोड़ा सा मैनेज करूंगा टर्म्स को, तनाव बिल्कुल मत लेना, ठीक है. इसको तो एज इट इज रखा, x1 बाई वन जेड वन से x प्लस डेल्टा एक्स बाई जेड, f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz. इस माइनस को प्लस कर दिया और लिमिट को रिवर्स कर दिया. x बाई जेड से x1 बाई वन जेड वन, सॉरी f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz, राइट और नॉट. अब देखिएगा हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आ रहा है, उस एक्सप्रेशन से मुझे क्या मतलब, यहां पर ये इंटीग्रैंड तो दोनों में कॉमन है, ठीक. अब मैं चाह रहा हूं कि x बाई जेड से, क्या चाह रहा हूं, x बाई जेड से x प्लस डेल्टा एक्स या x1 बाई वन जेड वन से, एक मिनट रुकना, x1 बाई वन जेड वन से x बाई जेड, और दिस इज द पॉइंट, x बाई जेड से अगर मैं कर दूं तो ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज. व्हाट आई कैन डू फॉर दैट इज, अगर मैं फाई ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स बाई जेड ले लूं, x1 बाई वन जेड वन से जाएगा, अगर यहीं से मैं थोड़ा सा आगे मैं ले लूं इसके साथ में, सो दिस कैन बी रिटन एज x बाई जेड, क्योंकि वो चेंज इन फाई लिख रहे हैं. सो x बाई जेड से p1 से p2 गए, p2 से एक डेल्टा वाला पॉइंट चले गए, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट.
so that from here I can manage the expressions like, so if I take this as x by z, ठीक है, just give me 1 minute, so this will have, अच्छा x by z से, नहीं, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अब मेरे पास में अगर रहे, जस्ट गिव मी 1 मिनट, इफ आई हैव दिस एक्सप्रेशन, देखिए अभी मैं इसको यहां पे रोक रहा हूं, लास्ट में जा रहा हूं, कुछ भी हौच पौच के बिना, बाकी फिर रेक्टिफाई कर देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं अपने को, ठीक। द एलएचएस में वी हैव, वो जस्ट टर्म्स मैनेज करने हैं, अभी कर दूंगा, दिल पे नहीं लेंगे, ठीक है, इट्स जस्ट स्लिप ऑफ माइंड। सपोज दैट इफ आई डिवाइड हियर y डेल्टा x, if I divide here y delta x, if I take the limit on the both sides, what I have done, I have taken the limits on both sides, so here it is limit delta x tends to 0, x by z to x plus delta x by z, so here the change in being occurred in the variable x only. Are you getting my point? So if I take this as f1 dx, whereas there is no change in y, change किसमें हो रहा है, change is occurred only in variable x, so dy is 0, dz is 0. Are you getting my point? So here you can mark the star if you are interested in the conceptual building, ठीक है। अभी what happens, this is giving you डेवर phi over डेवर x, definition of the differential calculus, ये बोला था, check it out please. this is बाहर से डेरिवेटिव का पार्ट बन रहा है, अंदर से इंटीग्रेशन का, so it comes out as f1 in the outside. So whatever the expressions management is there, you have to land up towards this expression. So whenever you are doing the proofs में अगर कहीं फंसने लगे तो जरा टारगेट पर गौर कीजिए और फिर थोड़ा बैक गियर मारिए, अपने आप चीजें क्रिस्टल क्लियर नजर आने लगती है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रूफ आपको रट देने हैं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को भी अभी मैं नोट्स लेकर आ सकता था, पीपीटी लेकर आ सकता था और उस पर खूब सर्किल करके आपको समझा सकता था, लेकिन नहीं यार, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। मैथ्स इज नॉट अबाउट रट्टा और दैट पीपीटी में सर्किल करने वाला, इट्स ऑल अबाउट बीइंग ओपन। नहीं आएगा, पढ़िए, सोचिए उसको, क्योंकि जितना आप सोचेंगे ना उतना ही चीजें निकल कर आएंगी कि अच्छा ये स्टेप क्यों हुआ, ये अगला वाला स्टेप कैसे आएगा, कहां पे क्या चीज मिस कर गई। और अगर पीपीटी टाइप की स्टडी है तो फिर तो ये तो सब आना नहीं है, क्योंकि उधर तो लिखा है ना, बस सब कुछ बोलना है। अरे सॉरी टू से, डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम जस्ट, मैं आपको सिर्फ एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा था कि अगर मैं आपकी तरह बच्चा बन सकता हूं तो आपको भी अगर इस हैबिट में रहेंगे तो बिलीव मी, यू विल फील दिस मैथमेटिक्स, यू विल डेवलप द स्किल ऑफ मैथमेटिक्स। सिमिलरली f1 मिल गया, इन द सेम लॉजिक वी कैन गो फॉर, सिमिलरली वी कैन फाइंड डेवर phi ओवर डेवर बाई एज, इसको सिमिलरली लिख देंगे, कोई जरूरत नहीं है मैथमेटिक्स में विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हर चीज को एक्सप्लेन करने की, एक एक्सप्लेन करना होता है, बाकी सिमिलरली लिख देते हैं। सो अल्टीमेटली अपने को क्या मिल गया प्यारे बच्चों कि f वेक्टर इज f1 i कैप मींस डेवर phi ओवर डेवर x i कैप प्लस डेवर phi ओवर डेवर j कैप, डेवर y j कैप प्लस डेवर phi ओवर डेवर z k कैप। दिस कैन बी रिटन एज डेल phi। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। प्रूफ क्या करना था कि इफ f वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चूजन, तो हमने ले लिया स्ट्रेट लाइन इज द सिंपलेस्ट पाथ फॉर अस, एंड बाय कंसीडरिंग एंड फॉलोइंग द पाथ आई लैंडेड अप ऑन द टारगेट। से यस और नो? कोई तनाव, कोई दिक्कत यहां पर किसी को भी? अब आपको समझ आया व्हाट इज द कॉन्सेप्चुअल ब्यूटी हियर। आज के बाद मन करेगा तो ये डेल फाई की फॉर्म में आ गया। अब ये जो डेवर phi ओवर डेवर x
इंटू डी एक्स प्लस डेबर फाई ओवर, देखेगा, क्योंकि यहीं पर एग्जैक्टनेस की बात करने लगेगा। किसकी बात करने लगेगा? एग्जैक्टनेस की। दिस इज व्हाट? डी फाई, राइट। तो अगर किसी फंक्शन के लिए यू हैव सम फंक्शन जिसका टोटल डेरिवेटिव गिविंग यू द सॉल्यूशन ऑफ दैट, देन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो यहां पर एक और वर्ड यूज कर सकता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, कि इफ the work done by the force vector F vector is independent of the path chosen from P1 to P2, then F vector is the exact differential of some scalar function phi। तो वहां ये नहीं चिल्लाने लगी कि यार ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाले सर ने नहीं पढ़ाया था, या वेक्टर वाले सर ने ये नहीं पढ़ाया, विजा विज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So that is why I love this mathematics optional, की चीजों को एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में देखना मुझे अच्छा लगता है। और इसके थ्रू अब आप देखिए कितने टाइप की कलाकारी हो सकती है आपकी। आई एम सेइंग कितने टाइप की कलाकारी हो सकती है, ठीक है। कहां से स्टार्ट किया था? कंजर्वेसी डन, वर्क डन का क्वेश्चन अभी कर सकते हैं। वर्क डन इज इंटीग्रेटिंग लाइन इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अगर एफ वेक्टर डेल फाई की फॉर्म में दे रखा है तो सीधा का सीधा फाई एट एंड पॉइंट माइनस फाई एट स्टार्टिंग पॉइंट। स्केलर फंक्शन फाई का मतलब समझ गए क्या है? तो हमने अभी तक आपको कर्ल नहीं पढ़ाया, लेकिन 3 PYQs, 3 कैटेगरीज ऑफ PYQs आपको बता दिया। बोलो हाँ या ना। कंजर्वेशी का मीनिंग क्या है एंड ऑल क्लियर है। अभी एक वर्ड बचा इररोटेशनल, क्योंकि जो प्लान है, प्लान से एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। तो 5 मिनट और ले ले क्या? आप लोग कहेंगे मास्टर बहुत झूठ बोलता है। चलिए ले लेते हैं 5 मिनट, है ना। अब देखिए कर्ल के केस में इररोटेशनल कहां से आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अब क्यूरियोसिटी हमारी क्या है? पीछे वाले क्वेश्चंस का काम खत्म। एक क्यूरियोसिटी और है कि ये जो इररोटेशनल वर्ड है, हाउ दिस इज बीइंग अटैच्ड टू द कर्ल। कर्ल irrotational means there should be some rotational property, ठीक है। suppose that you have, I'm sorry, देखिए ध्यान से, linear velocity that is v vector, okay, you have angular velocity as omega vector, ठीक है। मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इतने टफ प्रूफ्स मैंने कर दिए। ओमेगा वेक्टर जो होता है 1/2 कर्ल ऑफ वी वेक्टर निकल कर आता है, ठीक। ओमेगा वेक्टर जो है वो 1/2 कर्ल ऑफ वी वेक्टर निकल कर आता है। अगर आप PYQs ऑब्जर्व करेंगे तो सीधा सीधा एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा है आपसे, टू प्रूव दिस, आई गेस CSE में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लेना यार, फॉरेस्ट सर्विसेज में भी हो सकता है। तो अब आप कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन पूछा था इसलिए आपने ये क्वेश्चन बता दिया, नहीं तो आप नहीं बताते। अब जब से कर्ल पढ़ना शुरू किया होगा, किसी भी बेसिक लेवल बुक को आप उठा लीजिए दोस्त, हर बुक में, मैं कह रहा हूं हर एक बुक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं उसको, इसका मतलब आप सिस्टमैटिक लर्निंग नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग इन राइट वे। डिड यू गेट माई पॉइंट? सो व्हेन आई आस्क यू कि 1/2 कर्ल ऑफ वी वेक्टर होता है, अब आप कहेंगे कि सर 5 मिनट मांगे हैं तो इसको भी दिखाई दीजिए, क्योंकि आप लोग मानते नहीं है। मान लो अगर बी वेक्टर मेरा है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप,
तो कर्ल ऑफ वी वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है? दैट इज डेल क्रॉस वी वेक्टर. सो आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? डेवर ओवर डेवर एक्स. फर्स्ट वेक्टर इज डेल वेक्टर. सो डेल वेक्टर इज व्हाट? डेवर ओवर डेवर एक्स आई कैप प्लस डेवर ओवर डेवर वाई जे कैप प्लस डेवर ओवर डेवर जेड के कैप. So here it is v1, v2, v3. So if you talk about कि this curl of v I cap का component डेवर v3 over डेवर y minus डेवर v2 over डेवर y I cap plus देखिए ध्यान से j cap का component डेवर v1 over डेवर y minus डेवर v3 over डेवर x j cap. k cap का component डेवर v2 ओवर डेवर x माइनस डेवर v1 ओवर डेवर y के कैप. फिर अगर आप एंगुलर वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पढ़ने को दे रहा हूं, रीड अ बिट अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर. ठीक है. अब आप अगर यहां से देखेंगे और ओमेगा वेक्टर को एज्यूम भी कर ले, अगर ओमेगा 1 आई कैप प्लस ओमेगा 2 जे कैप प्लस ओमेगा 3 के कैप, तो वहां से भी आप इसको लिख सकते हैं. क्लियर है? पूरा पूछ लेते हैं यार आप लोग. ये होता है या ये होता है? पूरा आंसर मैंने आपको दे दिया अब. ठीक. So just based on these things you can prove this result. If you are more interested, you can go through the lectures of vector calculus as well. You can go through the class notes as well. So here I am telling you, here I am trying to make you feel कि यार कॉन्सेप्ट डिकोडिंग से फायदा क्या होता है. तो होता यह है कि अगर किसी का कर्ल 0 है, इसका मतलब होता है कि बी वेक्टर हैज नो रोटेशन. एंगुलर वेलोसिटी समझ में आ गई ना बात? रोटेशन से रिलेटेड है. तो बी वेक्टर हैज नो रोटेशन. दिस इंप्लाइज बी वेक्टर इज इररोटेशनल और इसी को बोला जाता है वर्टेक्स फील्ड. ठीक. तो ये कीवर्ड अगर आप अपने एग्जाम के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करेंगे, यू विल फाइंड दीज कीवर्ड्स माय डियर फेलोज. तो अब आप कहेंगे कि सर आज आपने किया क्या, क्वेश्चंस तो करवाए नहीं, तो मैं पीटूंगा तुमको जम के. सॉरी, लव यू. सो व्हाट आई से, आज मैंने आपके 10 घंटे बचा दिए पूरे वेक्टर कैलकुलस में. इवन इन द फ्लूइड डायनामिक्स ये चीजें आपको इतना परेशान कर सकती हैं, करती ही हैं, अगर आप इनको एक कनेक्टेड मैनर में ना समझें. तो मैंने आज आपको सारा चीज का निचोड़ दे दिया है. अब झूठ मूठ का तमाशा आप करते रहिए. सपोज दैट किसी ने कहा किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल 0 है और उसमें कोई कांस्टेंट a इन्वॉल्व कर दिया, तो a का वैल्यू निकालो, या फील्ड इज कंजर्वेटिव देन प्रूव दैट, या फाइंड द वर्क डन. So if you are interested in questions as well, we can go for that series as well. But here we are more confined, we are more concerned over the conceptual decoding. Is that clear? And conceptual decoding is not in ordinary manner, like it is randomly. It is very much planned कि एक concept में at least you get 4 to 5 categories of UPSC level questions. So today, whatever I asked you, whatever I promised you, I have fulfilled that now. So this is the way to study in right way. So if you are interested in more, you can do let me know. I can go for that. So we had started from curl, we went for conservation, we went for work done, we went for independent of path chosen, राइट. वी वेंट फॉर कि एफ वेक्टर डेल फाई में हो. एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहने का मतलब क्या होता है? आई टोल्ड यू फॉर दैट. आई टोल्ड यू अबाउट रोटेशनल प्रॉपर्टी अटैच्ड विद दैट.
क्लियर या नहीं? सो व्हाट डज इट मीन बाई इररोटेशनल एंड ऑल? सो आई गेस आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन क्वेश्चंस भी तो ज्यादा मिले, ठीक है? सो डू लेट मी नो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टॉपिक. इट्स गुड लक फ्रॉम माय साइड. Don't forget to put your views about the things ki what you wish in the next lecture. So it's enough from my side. Good luck.